Assalamu alaikum. Today we will take a biology lesson on the topic life processes in living organism part 2, and this is the first lecture of biology. In this lecture we will learn various concepts. So let's begin. So we will see in this lecture that what is the method of reproduction, that is sexual and asexual reproduction, reproduction and modern technology, reproductive health, and population explosion. So we will go one question at a time. Which are the important life processes in the living organisms? Various life processes in living organisms. Can you name it? Yes, correct. Respiration, digestion, digestion. Next one is l- next one is a reproduction. And various processes are like growth and development, and endocrinal activities. All these things are various processes are involved. One of the main is reproduction. Which are the life processes are essential for the production of energy and required by by the body, and you know that process is called as respiration, that we have listened, we have seen in the various periods, and last chapter also, about the cellular respiration. What is that cellular respiration? Cellular respiration is the same that required production of energy. Cellular respiration is the only way through which we are getting energy. Which are the main types of cell division and what are the differences? Basically, types of cell divisions are two. I think everybody knows: mitosis and meiosis. And what is the difference? Mitosis is a equational division, means one cell when goes into mitotic division becomes a second cell of similar kind. Meiosis is, on other hand, is a reductional division. Correct? Means one cell of 2n divided into two cells of n and n. Okay. What is the role of chromosomes in cell division? Basically, role of chromosome in cell division is, from chromosome itself we get all the things, all the information of cell division. Now what we have answered earlier is given over here also, that life processes. What are the life processes? There are various life processes. Okay, one of them is nutrition, respiration, excretion, sensation and response, that is what we called as control and coordination. Each of these living organisms are alive because of these processes. One of the most important process is, it's the reproduction. It reproduction, it helps to maintain the continuity of the species of that organism. By the reproduction, एक स्पीसीज अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करती है, मतलब वो स्पीसीज नेक्स्ट जनरेशन उसकी वो स्पीसीज को बचा के रखती है. ठीक है, इस बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. Observe the pictures of and tell the life processes that you are identifying. These are the pictures you have to identify, and what are the life processes that involve in it. See, this is a process in germination, and new shoots and new roots are new plant is developing over here. This is a process in which the this plant goes over here, and from here new plant will come. This is a hen that is giving an egg, and that from that egg new chicken will come out. And this is a one organism that may be what we called as a amoeba. From amoeba,
से यहाँ पर अम्यूबा से दो डिफरेंट अम्यूबा बन रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो ये अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस है जिसके अंदर एक स्पेसीज अपनी कंटिन्यूटी बता रही है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज? मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज है फॉर एग्जांपल ए, ये अपने आप को कैसा मेंटेन कर रही है, और ये स्पीसीज का एक टाइम था, फॉर एग्जांपल 100 ईयर्स तक थी, ये 100 ईयर्स तक जिया था ये ए। अब उसकी जो जनरेशन है ए की, वो है बी, और ये बी आगे नेक्स्ट जनरेशन, ये भी 100 ईयर्स जिया था, और ये सी आया, वो भी 100 ईयर्स जिया था। मतलब ये बाप है तो ये उसका बच्चा है, और ये उसका बच्चा है, और ऐसे से जो है तो एक स्पेसीज जो है तो ट्रांसफ़र मेंटेन कर रही है, अपने आप को बचा के रख रही है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज मेंटेनेंस ऑफ स्पेसीज। वेदर अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू द अर्लियर वन दैट हैज़ प्रोड्यूस ऑफ इट। See, new organism that genetically exactly similar to the earlier one that has produced of it. Yes, reproduction में जो न्यू रहता, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोड्यूस होता वो एग्जैक्टली सिमिलर रहता, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आते रहते। हु डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीसीज विल एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट? दैट डिटरमाइन बाय द जीन्स। जीन्स जो रहते ना वो डिटरमाइन करते कि वो सिमिलर रहेंगे या नहीं रहेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय द अर्लियर एग्जिस्टिंग? सेल डिवीजन से फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और सेम स्पीसीज का क्या रिलेशन है? तो आपको मालूम होगा कि सेल डिवीजन की वजह से सेल डिवीजन जो होता है उसमें दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है तो हाफ़ हो जाते हैं, और वो हाफ़ होने की वजह से हाफ़ इधर पेरेंट से मिलता है, एक पापा के साइड से एक मम्मी के साइड से, और वो बन जाता है टोटल 1। और इसकी वजह से जो है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाता है जिसके अंदर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इट गेट फ्रॉम मदर, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इट गेट फ्रॉम फादर. So the definition of reproduction is that formation of new organism of same species by the earlier existing organism. जो पहले से एक ऑर्गेनिज़म है उससे एक नया ऑर्गेनिज़म बन रहा है, एक नई जान वाली चीज़ बन रही है, ऑफ सेम स्पेसीज। मतलब पहले एक ह्यूमन है, वो ह्यूमन से दूसरा एक नया ह्यूमन बन रहा है, बेबी बन रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन ही है सेम स्पेसीज से, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन. What it is called as reproduction. ठीक है। अब रिप्रोडक्शन है ना दो टाइप का रहता, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम थोड़ा डिटेल में देखते। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, ये डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय an organism of same species without involvement of gamete is called as sexual reproduction. जब गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता सेम स्पीसीज का पुराने ऑर्गेनिज्म से, उसको कहते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स बेसिकली ये एक, दिस इज़ वन टाइप ऑफ अ थिंग दैट इंडिविजुअल प्रोड्यूस at the time of reproduction. ठीक है, at the time of reproduction when the individuals produce a thing that is called as gamete. जब गैमेट इन्वॉल्व होते हैं और रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है तब उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व टू डिफरेंट गैमेट एक है ना मदर के साइड का रहता, एक फादर के साइड का रहता. ये दोनों भी गैमेट्स जब इन्वॉल्व होते तो उससे जो है तो एक न्यू बॉर्न बेबी बनता, जिसको बोलते कि जिसकी वजह से क्या होता, एक इसमें जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल नया आएगा उसके अंदर थोड़ी से है ना सिमिलैरिटीज़ रहेंगी दोनों भी पेरेंट की, और बहुत सारी डिसिमिलैरिटी भी प्रेजेंट रहेंगी. ठीक है. अब
जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते। जब गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर क्या होगा, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटीज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जैसा पेरेंट है उसके जैसी ही वो रहेगा, एग्जैक्टली सिमिलर। दिस इज़ यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर एक ही पेरेंट की ज़रूरत है, दोनों पेरेंट की ज़रूरत नहीं है। और इट अकर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जब एक सेल अपने जैसी दूसरा एक सेल बनाता है, इसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। Absence of genetic recombination is a drawback, whereas the fast process in advance of this reproduction। देखो इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन माइटोसिस के अंदर होता। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता। मदर के साथ का एक जीन्स जो रहता वो फादर के साथ के एक जीन के साथ कंबाइन होता, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस होता क्रोमोसोम के अंदर। उसको बोलते हैं हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होगा तो यहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं। मतलब ये जो है नया बेबी जो रहेगा उसके अंदर वेरिएशंस रहेंगे उसके दोनों पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट अगर समझो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जैसा पेरेंट है, फॉर एग्जांपल कि पेरेंट स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट रहेगा, जैसा वो पेरेंट रहेगा वैसा ही बेबी रहेगा। तो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे मेथड्स है। हम असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अम्यूबा। उसमें फर्स्ट है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इस क्या है, देखो जब एक पेरेंट अम्यूबा रहता है, ठीक है, जब उसके अंदर रिप्रोड्यूस उसको करने का रहता है तो वो डिवाइड होता, ठीक है। डिवाइड होने के बाद जो उसका न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा सा डिवाइड होना चालू होता, ठीक है, पूल हो रहा। फिर बाद में और थोड़ा सा आगे जाता है और वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद से उसके सेंटर में से एक क्लेफ्ट बनना चालू होती है और वो इसको डिवाइड कर देती है, और ये जो दो बनते हैं इनको कहते हैं हम डॉटर अम्यूबा, ठीक है। ये डॉटर अम्यूबा जो रहते हैं ये क्या हुआ, इसके अंदर बाइनरी फिशन हुआ। बाइनरी फिशन मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े हो गए, बाइनरी टू फिशन ब्रेकडाउन। एक पेरेंट अम्यूबा ब्रेकडाउन हो गया डॉटर अम्यूबा के अंदर, इसके अंदर पेरेंट अम्यूबा जो है तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के भी दो टाइप है, दैट इज़ सिंपल बाइनरी फिशन, वो जो हमने अभी देखे, जिसके अंदर क्या होता इस टाइप की जो है तो सॉरी सिंपल बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर जो हो रहा है वो। दूसरा एक रहता जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। दिस इज़ अ पैरामीशियम, पेरेंट पैरामीशियम, उसके सेंटर से एक क्लेफ्ट बनना चालू होंगी जो प्रोग्रेस करेंगी और दोनों को जो है तो क्या करेंगे, ट्रांसफरली कट कर देंगी, ट्रांसवर्सली कट कर देंगी। और ये कट होने के बाद ये डॉटर पैरामीशियम्स जो है तो बड़े हो जाएंगे। इसके अंदर भी पेरेंट जो है तो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, कम्प्लीटली जो है तो डॉटर पैरामीशियम में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। सिंपल बाइनरी फिशन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में डिफरेंस ये है, सिंपल बाइनरी फिशन के अंदर एक अम्यूबा है वो कहीं से भी, इधर से भी ब्रेक होना चालू हो जाएगा या इधर से भी ब्रेक होना चालू होगा या इधर से भी होगा, करेक्ट। बट ट्रांसवर्स के अंदर एक ट्रांसवर्स क्लेफ्ट, एक पैरामीशियम है उसको ट्रांसवर्स ऐसा आधा काटती हुई एक प्लेट बनेगी और वो दोनों को इसको डिवाइड कर देंगी और डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगे। तो बाइनरी फिशन के कितने टाइप्स है, टू टाइप्स है, दैट इज़ सिंपल और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। थर्ड वन इज़ अ लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में क्या होता, जो डिवीजन रहता एक्सिस का, ये जैसा यूग्लिना के अंदर ये यूग्लिना है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पहले इसके न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर ये उसका है ना फ्लाइजिलम डिवाइड होगा, और ये फ्लाइजिलम डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होगा। होने के बाद जो है तो वो ऊपर से ऐसा खड़ा कटते जाएंगी, खड़ा करते जाएंगा और फाइनली जो है तो डॉटर यूग्लिना बन जाएगा। इसको ये बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब होता ऊपर से नीचे की जानिब, मतलब कि
एक आपके पास ये ऐसा 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 कुछ जो भी है, आप उसको ऊपर से नीचे काट रहे, इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है। ट्रांसवर्स किसको बोलेंगे, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है ऐसा, आप ऐसे से ऐसा काट रहे, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स लॉन्ज बाइनरी फिशन ये हो गया, लॉन्जिट्यूडनल ये हो गया, ट्रांसवर्स ये हो गया। और सिंपल मतलब कहीं से भी हो जाएगा, इधर से भी कट सकता, इधर से भी कट सकता, जो कि अम्योबा में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक टाइप है जो अमीबा परफॉर्म करता है जब उसको कुछ चीज़ नहीं मिलती। ठीक है। क्या नहीं मिलता, उसको फूड नहीं मिलता। फूड नहीं मिलता ड्यू टू लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन, मतलब अमीबा को सर्वाइव करने मिल रहा ही नहीं। ऐसे इसके अंदर अमीबा बिकम राउंड एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। देखो अमीबा कैसा रहता है, ऐसे उसके सूडोपोडिया रहते, ये जो रहते क्या रहते, सूडोपोडिया। तो क्या होता है जब अमीबा को जो है तो एडवर्स कंडीशन के अंदर ये अमीबा क्या होता है, इस टाइप का राउंड बन जाता है। ठीक है। उसके जो ऐसे एजेस थे ना सूडोपोडिया की, ये ऐसे एजेस, ये ऐसे, ये सब है ना उसके क्या हो जाते, राउंड बन जाते। और राउंड बनने के बाद ये अपने पास है ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं हम, सिस्ट। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, सिस्ट। और अम्योबा क्या हो जाता है, ये सिस्ट के अंदर बैठे हुआ रहता। ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस रहता अम्योबा का, ये एक न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस है ना क्या होता, डिवाइड होना चालू हो जाता, और छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते रहते। साथ में उसका है ना साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता। ठीक है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता, न्यूक्लियस भी, जो हमने देखे थे माइटोसिस डिवीजन के अंदर। इसमें माइटोसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता, और इसके बाद जो ये बन जाते हैं इनको बोलते हैं अम्योबुली, अम्योबुलाई। ठीक है। ये अम्योबुलाई मल्टीपल फॉर्म हो जाते हैं, जब उसको फेवरेबल कंडीशन होंगी तो फिर ये सिस्ट यहाँ से ब्रेक होंगी, और ये अम्योबुलाई जो रहते हैं, अब देखो चार बने हुए इसके अंदर, ये चारों क्या होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर, और ये चारों से चार अमीबे बन जाएंगे। ठीक है। जब उनको अच्छी कंडीशन मिली तो ये चार अम्योबा बन गए। इसी टाइप से जो है तो अम्योबा के अंदर मल्टीपल फिशन होता, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम जो है तो ब्रेक डाउन हो जाता। ये को 4 बार हो गया तो 4 बने, इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिशन। करेक्ट। देखो यहाँ पे बताया हुआ एक पेरेंट अमीबा है, उसका जो है तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता, उसका डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन, ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और ये ऐसे छोटे 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 अम्यूबुले बनेंगे। और ये अम्यूबुले जो है तो क्या होता है, जब कंडीशन अच्छी रही तो यहाँ से रप्चर हो जाते, और ये एक एक अम्यूबुले से एक एक बड़ा अम्यूबा बन जाता। ठीक है। दिस वन इज़ लास्ट वन। व्हाट इज़ दिस बडिंग। चलो इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो बडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यीस्ट है। ठीक है। यीस्ट के अंदर क्या होता है, जब भी है ना उसको पेरेंट को रिप्रोडक्शन करने का है, तो ये यीस्ट का पेरेंट सेल जो है ना क्या करता, उसके एक साइड में यहाँ पे है ना एक बल्ज तैयार होना चालू हो जाता, वो ऐसा बल्ज बनाता जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस भी आ जाता। फिर ये बल्ज जो है ना एक टाइप का, इस टाइप की एक बर्ड का शेप ले लेती, और ये बर्ड जो है तो फिर वो ग्रो होना चालू होती, और वो ग्रो होके एक न्यू ईस्ट सेल बना देती, जिसको फिर वो न्यू ईस्ट सेल से दूसरा ईस्ट सेल यहाँ बनेगा। तो ये पहला था, फिर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, इन सब को बोलते हैं डॉटर ईस्ट। इसी को इसको जो बोलते हैं बर्डिंग, मतलब पहले ये एक ईस्ट का सेल था, इसके यहाँ पे बल्जिंग हुई, और ये देखो बल्जिंग होने के बाद ये ईस्ट का सेल था, फिर इसके यहाँ पे बल्जिंग हुई, बल्जिंग होने के बाद जो है तो ये अंदर का न्यूक्लियस जो है ना ये बल्जिंग में घुस जा रहा। बल्जिंग में घुस जाने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर जो है तो यही बल्जिंग जो न्यूक्लियस था वहाँ पे टूट गया साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने की वजह से, न्यूक्लियर डिवीजन होते। अब ये जो बर्ड है, ये बर्ड और रिप्रोड्यूस करेंगे, ये बर्ड उसके आगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, ये और ये और, इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं बर्डिंग। ठीक है।
आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इंशाल्लाह।